Hello everyone, I'm Abbas and you're watching Sehat Shala, your healthcare channel. And this is the first video in the healthcare startup series. And I have with me a very special guest, Dr. Anup Yadav. He is the CEO of Remidazo, which is a medical tourism company based out of Gurugram. You will learn more about Dr. Anup and his journey, his startup later in the video. So before we move forward in the video, I'll request everyone to please subscribe and hit the bell icon. So, Dr. Anup, welcome to Sehat Shala. Thank you. Hello everyone, myself Dr. Anup Yadav. I was working with medical oncology and hematology for last 6 years. I started my career in medical oncology and hematology and still working with Millennium Cancer Center in Gurgaon. So in 2016, I started my career in Artemis Hospital where I was dealing with international patients. So on daily basis, we were seeing around 10 to 15 patients. And when I was going for a round, I have seen a big problem with them. Like the whole medical tourism market is run by the interpreters. And most of the patients, they don't have the enough fund. Like the interpreter who called them in India, they have given a wrong price. Because of that, the patient have to go back with the half of the treatment, or sometimes they refuse the treatment because without money you can't go forward. Right. So that's the problem I encountered throughout my journey with the international patient. And along with that, there is one more problem which patients face when they travel is the transparency in the cost. They won't be informed on time, so they can't arrange the finances from their country because it will take time. And I start taking feedback from the patients. So I took around more than 100 feedbacks, and based on that, we created Remidazo. Mm-hmm. And Remidazo is a pilot project which is providing medical tourism services in Thailand, Singapore, Malaysia, Turkey, and India. And in future, we are planning to cover Mexico, Croatia, Iran, so that the patient don't have to travel a long distance. He can look at treatment in the nearby country also if the same price and better standards are available. So that way we are working on it. So after we started with the 4 directors. So the idea of the Remidazo is two things we are doing. First, there is no proper search engine for the healthcare. Like whenever you go online, you check a price. The price are not the recent one. Anybody who have put in any block in 4 or 5 years back, and you can see the price, and you can't make the estimate of what is the current price going on, what will be the total price of the procedure. Like I'll give you a classical example. If you go for a bone marrow transplant, if you check the price in India online, it will be 3 lakh. 3 lakh is the cost of procedure. Okay. After that, you need, क्योंकि आप जब marrow transplant करें तो आप you need a 1 month stay post transplant. So उससे cost 15 lakh increase हो जाता है. So when the patient check online, they keep asking us, sir, the price is 3 lakh based on the online data. So we say that is the procedure cost. But you have to, in any transplant case, you have to stay for 1 month in the hospital. Per day stay in Delhi NCR is minimum to minimum 40 to 50,000. So the cost will be added to that. So the clarity is not there. Second, if you go to online, everybody is claiming they are best. Even a small hospital who has a 10 bedded, they're claiming they're providing the best super specialty care. So that is confusing for the patient. Okay, how he'll differentiate? There are no differentiator in the market. So what we are doing, we are creating a live search engine for them. So patient come to our platform. He'll put his origin, he'll put his destination, where he want to go, and he'll put his medical condition. So he'll get the idea about the treatment cost, what will be the duration of stay, accommodation cost, visa fee, and transport cost. And along with that, he'll get the profile. Like if you search for Thailand, so you'll get the idea who will be the best cardiologist. So you get the profile. Any live publications are available for those. So those will be published on the same page. And along with that, you get an option to check the price in Turkey and India. Like if you are not rich enough, and Thailand is almost 3x of India, so you can choose the other country and continue your treatment. You don't have to hold your treatment just because of the money. So that is the change we are want to create in the market. कि अगर आपका affordability का issue है, तो you choose the country जहाँ पे वो चीज reasonable price पे, instead of avoiding the treatment. क्योंकि ये सब life saving procedures हैं, and each life is matter for us. So that way we are approaching कि आप based on your financial condition, based on the medical standard, आप अपनी country choose करें, तो वो एक बहुत बड़ा factor होता है आपके outcome में. कि अगर आप financially breakdown नहीं होंगे, तो आपका outcome better ही होगा. क्योंकि कॉम्प्लिकेशन कम, आप कोई भी सर्जरी करते हैं, कोई भी मेजर प्रोसीजर करते हैं, कॉम्प्लिकेशन आते हैं. प्रॉब्लम विल इंक्रीज द कॉस्ट बाय 4 to 5 फोल्ड्स, जहां पे पेशेंट प्रिपेयर्ड नहीं होता. सो यू टेक द राइट कॉल. सेकंड, पेशेंट का एक, जैसे कि जो थ्रू आउट मेडिकल टूरिज्म मार्केट है, दैट इज रन बाय मिलियंस ऑफ इंटरप्रेटर्स, जो 12th पास ग्रेजुएट हैं, और उनको दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, दे डोंट अंडरस्टैंड द हेल्थ.
तो उनके साथ भी प्रॉब्लम ये है कि दे आर मनी ड्रिवन, कि जहां से जिन डॉक्टर से और जिन हॉस्पिटल से उनको कट ज्यादा मिलता है, बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं, वो उनको प्रिफर करते हैं। ये इट्स नॉट बेस्ड ऑन द डॉक्टर स्टैंडर्ड, इज बेस्ड ऑन द मनी, कि कहाँ पे वो पेशेंट रेफर किया जाएगा। दैट्स अ प्रॉब्लम। और इफ आई सी माय कॉम्पिटिटर्स, जैसे वेदम है और भी हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम है कि दे हैव हाइलाइटेड ऑलमोस्ट लाइक राइट नाउ आई एम वर्किंग विद 160 हॉस्पिटल इन इंडिया, आई हैव 500 कार्डियोलॉजिस्ट ऑन माय प्लेटफॉर्म. So if I'll put a 500 cardiologist on my platform, is it helpful for the patient who's sitting in Nigeria or some other country? आप 500 डॉक्टर प्रोफाइल नहीं दे सकते. Everybody is following the same trend. Number is not advantage. The point is कि the doctor should be specific. Like if I want to offer a cardiologist to a patient, I just give him a 20 cardiologists out of my 500, जो कि मेरे हैंड पिक्ड होंगे, लाइव फीडबैक्स के पेशेंट के बेस पे, वो उनकी रेटिंग के बेस पे पेशेंट डिसीजन ले सकता है कि व्हाट एक्सपीरियंस अदर पेशेंट हैड. तो वो चीज हम लेके आना चाह रहे हैं कि आपको एक लाइव रियल टाइम डाटा मिलेगा किसी भी प्रोसीजर का, किसी भी हॉस्पिटल का, और उसके बेस पे आप अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हो. दैट्स द वन ऑफ द थिंग जिसमें हम पेशेंट का टाइम सेव कर रहे हैं, एनर्जी सेव कर रहे हैं. नॉर्मली इफ यू गो ऑनलाइन, you search for the medical cost and everything in different countries, it will take around 2-3 hours. You can do it in just click of 2 buttons on our platform. Second, जो journey है वो बहुत painful है. Like the interpreter calls them to a particular city because everybody is localized, every company is localized, and वहाँ पे they'll see 2-3 patients और 2-3 doctors, उनमें जो उनको पसंद आता है उनको उसी में से चूज करना पड़ता है. क्योंकि if you mobilize to other city, उस पे added cost होती है, waste of time होता है. Second, आपको जब आपको ट्रीटमेंट, बिफोर यू कमिंग टू इंडिया, आपको नहीं पता था कि आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा. तो आपको फिर उस हिसाब से, अगर दे विल गिव एस्टिमेट ऑफ 10 लाख, आपको उतना फाइनेंसेस अरेंज करना होता है, अपनी फैमिलीज को कॉल करनी होती है, और फिर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो. रेमेडाजो आपकी जर्नी को इम्प्रोवाइज कर रहा है. आपको ट्रेवल करना नहीं है. आप पहले अपने घर पे बैठिए, आप हमारे पास रजिस्टर कीजिए. हम आपको, अगर आपको जैसे कि एक कैंसर का इलाज चाहिए, तो हम आपको 3 बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट देंगे, हैंड पिक्ड, और बाकी आप भी चूज कर सकते हैं हमारे पूल में से, और उनसे आप फ्री एक कंसल्ट कीजिए. जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के उससे डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, तो ही टेल यू कि ये ट्रीटमेंट हो सकता है, ये ड्यूरेशन लगेगा, ये कॉस्ट रहेगा, इतना टाइम लगेगा इस कंट्री में. तो पेशेंट के पास फिर इनफ टाइम होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज करने का, अपना ट्रैवल प्लान मैनेज करने का. और उसके बाद जो जर्नी है उसको हमने QR कोड सिस्टम से क्रिएट किया है कि पेशेंट एक QR कोड रहेगा. तो जैसे वो जैसे इंडिया में पहुंचता है, तो वहां से एयरपोर्ट पे QR कोड स्कैन होगा, जो हमारी टीम से उसको रिसीव करने जा रहा है. तो वो QR जैसे वो चेक पॉइंट टिक होगा, स्कैन होगा, जो पेशेंट का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है वो उसको अपडेट जाएगा. अगर उसका कोई ट्रीटिंग डॉक्टर है उसकी कंट्री में, उसको अपडेट जाएगा. हमारे यहाँ पे जो ऑपरेशन टीम है और जो हॉस्पिटल है, उनको अपडेट जाएगा. तो पेशेंट जब अपने घर से निकलेगा, उससे पहले उसका OT, उसका OPD, उसके टेस्ट सब बुक होंगे जो अर्जेंटली रिक्वायर्ड है. तो वी आर सेविंग टाइम फॉर इट, कि अगर वो इंडिया में आज उतरता है तो नेक्स्ट 2 डेज में वो ऑपरेट हो सकता है. अगर कोई प्री ऑपरेटिव टेस्ट रिक्वायर्ड है तो वो अपनी कंट्री में भी करा के आ सकता है. इट्स नॉट कि दे हैव टू कम हियर. तो ये सब प्री वर्कअप वहां भी किया जा सकता है. या डॉक्टर को कोई डाउट है, उसको कोई स्पेसिफिक टेस्ट चाहिए टू फाइनलाइज द ट्रीटमेंट प्लान, वो भी वहां पे किया जा सकता है. तो बेसिक जो बाहर की डेवलपिंग कंट्रीज है, उनमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे सुपर स्पेशलिटीज नहीं है. लाइक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मोर देन 100 कंट्रीज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट है नहीं. वो चीज हम, अब जैसे आपने सारी चीज आपकी बुक है, आपने अपने अकोमोडेशन गए, पेशेंट गए, उसी के साथ हमने क्या किया है कि यहाँ पे एसेप्टिक होम्स क्रिएट किए हैं दिल्ली NCR में, और हम पूरे इंडिया में कर रहे हैं. कि अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए आ रहे हैं तो उसमें आपको मंथ और 2 मंथ आपका हॉस्पिटल स्टे होता है, हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं. हाउ कि जो भी हमारे जो एसेप्टिक अपार्टमेंट्स होते हैं, वो आपके पूरे इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे. सेम जो केयर आपको हॉस्पिटल मिल रही है, सेम केयर आपको उस घर पे मिलेगी. नॉर्मल हॉस्पिटल स्टे का कॉस्ट 50 to 60,000 जाता है पर डे, हमारे स्टे का कॉस्ट जाएगा 10,000. So I'm almost saving around 40-50,000. So we are not claiming to save money. We are trying to help them कि उससे सेव करें. हम ओयो उबर के साथ काम कर रहे हैं ताकि उनको कॉस्ट इफेक्टिव बेटर सर्विस मिले. We are not hiring private companies which are charging a huge amount for the basic services. तो ये हम थोड़ा सा चेंज लाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो ओवरऑल जब आपका कॉस्ट बनता है, दैट इज समटाइम्स अनअफोर्डेबल. और अगर कोई लाइफ सेविंग प्रोसीजर है और वो अनअफोर्डेबिलिटी की वजह से वो पेशेंट वापस जा रहा है, तो इट्स अ बिगेस्ट फेलियर फॉर मेडिसिन. वो मतलब हम किसी को अमीर नहीं कर सकते, बट इट्स आवर ड्यूटी टू मेक श्योर कि नोबडी विल डाई विद द लैक ऑफ ट्रीटमेंट. एंड उसके बाद एसेप्टिक आप ये चूज कर सकते हो. आप अगर जैसे आपका सर्जरी हुआ है, आप सर्जरी के बाद आपका 5 डेज का स्टे है, आप अर्ली डिस्चार्ज ले सकते हो, सो दैट आपकी कॉस्ट कट डाउन. जो भी आपके हॉस्पिटल प्रोटोकॉल है, हम सेम आपके अकोमोडेशन पे फॉलो करते हैं. हमारे पास क्रिटिकल केयर मॉनिटरिंग डिवाइसेज हैं, हमारी खुद की नर्सिंग टीम्स हैं, हमारे खुद के डॉक्टर्स हैं जो आपका ये सारा सुपरवाइज करेंगे. तो वहां पे हम कॉस्ट कम करते हैं. थर्ड मेन प्रॉब्लम होती है जो पेशेंट आता है, इट्स ए काउंसलिंग पार्ट, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं ट्रीटिंग टीम और पेशेंट के बीच में, और कुछ बिलिंग के इश्यूज होते हैं जो मेजर हम लोग फेस करते हैं. तो इसके लिए हमने क्या किया है, आपको डेडिकेटेड डॉक्टर दे दिया है.
जो आपका एक गाइड रहेगा और वो मेडिकल ग्रेजुएट रहेगा, और वो आपको आपका जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो आपको डेली बेसिस पे एक्सप्लेन करेगा और साथ में आपके बिल को सुपरवाइज करेगा. सो यू विल बी मेक श्योर कि नथिंग, यू वोंट बी गेट चीटेड. एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी वो क्या कर रहे हैं कि आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, देन यू विल गो बैक योर होम एंड यू विल लीव योर होम. दैट्स नॉट द ट्रीटमेंट. आपका पोस्ट फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सर्जरीज के ट्रीटमेंट के, उनको भी मॉनिटर करना है. तो हमारा जो सिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप पेशेंट को यहाँ से जाने के बाद भी नोटिफिकेशन आएंगे उसके कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और उसको किस डॉक्टर से कब कंसल्ट करना है. एंड दिस फॉलोअप सिस्टम इज फ्री फॉर द पेशेंट. उसका कंसल्टेशन भी फ्री है और उसका ये जो पार्ट ऑफ द नोटिफिकेशन है वो भी फ्री रहेगा. And fifth, one of the unique products we are coming up with, because we are a medical tourism company, we want to give an end-to-end solution. तो हमने country wide solution बनाए. इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेडिकल लीगल, कि अगर हॉस्पिटल या डॉक्टर कुछ गलत करता है तो what they do, they start protecting each other. वो नोट्स में मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. सो एज ए सर्विस हमारे पास खुद के फोरेंसिक डॉक्टर्स हैं, खुद के लॉयर्स हैं, वो भी पेशेंट के लिए अगर उनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ 80% ऑफ द केसेस में मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. तो फोरेंसिक डॉक्टर आएगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा. अगर ये पेशेंट का बस डाउट है और ये कोई नेग्लिजेंस नहीं हुआ, तो वो पेशेंट को एक्सप्लेन करेगा और मेकिंग कंफर्टेबल, सो दैट उसके माइंड, व्हेन ही लीव द कंट्री, उसके माइंड में डाउट ना रहे कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है. अगर उसमें कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है या उसमें कुछ सिग्निफिकेंट एविडेंस है जिसमें कि ये हम कहते हैं कि भाई डॉक्टर ने गलत काम किया, हॉस्पिटल ने गलत काम किया, तो वी आर प्रोवाइडिंग लॉयर्स टू देम, एंड दैट दीज सर्विस आर आल्सो फ्री. और उसमें एट द एंड अगर वो केस जाता है और हमारे लॉयर्स वो केस, तो उनको वो 20% कंपनसेशन लॉयर का रहता है और रेस्ट गो टू द पेशेंट. We are not charging any money. The reason being, अगर already somebody lost somebody for due to this kind of miscommunication, तो उसकी वजह से वो पे क्यों करे? Anyhow, सबसे बड़ा मेडिकल टूरिज्म में प्रॉब्लम क्या है? If you go to a good doctor, if you go to bad doctor, if you go to any hospital, outcome either cure होगा और either death होगा. Right? तो जो डेथ वाले सीन्स होते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन होता है, उसमें डॉक्टर्स के फॉल्ट भी नहीं होते, क्योंकि जब when we tell the patient कि 10% कॉम्प्लिकेशन है, तो they understand 10% चांस. But the reality is कि out of 100 we do this procedure, 10 will die. और वो 10 कौन है हमें नहीं पता. तो ये एक्सेप्टेंस भी हम लेके आते हैं अपने पेशेंट पे, और हमने ट्रांसपेरेंसी लाई है. हमारे जो बिलिंग सिस्टम है उसमें हम हॉस्पिटल को जो अप्रोच करते हैं, तो एक डिटेल एस्टिमेट होता है जिसमें आपका एनेस्थीसिया, ओटी चार्ज, डॉक्टर्स चार्ज, नर्सिंग चार्ज, आपका जो वो डेली बेड चार्ज कितने डेज का इंक्लूड रहेगा, कितना, वो एवरीथिंग विल बी मेंशन. तो उसमें एक रिटर्न फॉर्मेट हम पेशेंट को देते हैं कि व्हाटएवर इज रिटन दिस इज कवर्ड इन दिस अमाउंट. रेस्ट अगर आपका कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होता है, कुछ भी जैसे आपका डे स्टे बढ़ता है या कोई मेडिसिन एक्स्ट्रा ऐड होती है जो कि एक्सपेंसिव है, तो दैट विल चेंज द कोस्ट. दैट्स इजी फॉर अस टू एक्सप्लेन द पेशेंट, जो कि अभी मार्केट में कोई नहीं कर रहा है. So most of them they'll give a rough estimate of $10,000, $15,000. So after that they come here and तो वो कॉस्ट विल बी चेंज, क्योंकि वो इवैल्यूएट करेंगे पेशेंट की बेस्ड ऑन कंडीशन, ट्रीटमेंट मॉडिफाई करेंगे तो कॉस्ट चेंज हो जाएगा. एंड जो सबसे बड़ा मेरे को प्रॉब्लम लगता है इज द इंटरप्रेटर्स. व्हाई? कि इफ आई एम ए डॉक्टर या इफ आई एम ए इंटरप्रेटर, पेशेंट अप्रोच में वो कहेगा कि सर मेरे को ट्रीटमेंट चाहिए, मैं कहूंगा इन इंडिया इट्स कॉस्ट अराउंड $20,000. he'll call the other interpreter, he say the cost will be $10,000. That point of time I'll be the culprit. ठीक है, पेशेंट उसने उस पेशेंट को that guy will be, yeah, what a man, he's doing, he's just offering us half cost, and he call the patient. फिर there will be two scenario. cost $20,000 ही था, पर उसने क्या किया कि वो $10,000 में उसको वहां जाके बोला कि हमने जो प्रोस्थेसिस ऐड किया था वो इंडियन स्टैंडर्ड था, अब हम यूएस स्टैंडर्ड डालने वाले हैं, so they multiply the cost. और either वो then they'll start making excuses कि क्योंकि जो 10,000 वो नहीं होने वाला, तो then they make stories, they add something and they'll take out almost 20,000. The problem is कि ठीक है तुमने गलत एस्टिमेट दिया, but patient, हर पेशेंट उतना प्रिपेयर्ड हो कि वो $10,000 और 20 दोनों अफोर्ड कर पाए. That's rare. एक चीज पूछना चाहूंगा डॉक्टर अनु, क्योंकि जैसे आपने बताया था कि 160 हॉस्पिटल्स का टाई अप है, तो जैसे इंडिया के अलावा भी यू हैव टाई अप्स लाइक इन अदर कंट्रीज, और सिर्फ पैन इंडिया? हमारा इंडिया में पैन इंडिया है. वी आर वर्किंग विद ऑल द मेजर सिटीज, एंड टर्की में हमारे पास अभी 60 हॉस्पिटल्स हैं, एंड इन टर्की आल्सो वी आर कवरिंग अराउंड 8 सिटीज, एंड थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर वी आर एवरेज. क्योंकि यहाँ पे गेम नंबर्स का नहीं है, यहाँ पे गेम है बेस्ट हॉस्पिटल्स का, बेस्ट डॉक्टर्स का. सो जैसे जब हम हॉस्पिटल्स को अप्रोच भी करते हैं तो वी कैटेगराइज है. पहली हमारी प्रियोरिटी होती है JCI एक्रेडिट, कि जो यूएस के स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है और यूएस के एक्रेडिटेशन फॉलो कर रहा है, तो एटलीस्ट देयर इज अ अथॉरिटी हु इज रेगुलेटिंग द क्वालिटी, तो वो हमारा प्रायोरिटी रहता है. सेकंड फेज में अगर उनके पास JCI नहीं है, तो बेस्ड ऑन हम ऑनलाइन जो उनके आपके पब्लिकेशंस आते हैं और पेशेंट के जो हॉस्पिटल के पब्लिकेशंस आते हैं, उनके बेस पे डिसाइड करते हैं कि दिस हॉस्पिटल इज गुड और नॉट, उसके बेस पे हम उनको ऑनबोर्ड करते हैं.
एंड जो भी डॉक्टर जैसे पेशेंट जब यहाँ से जाता है तो एक इंपॉर्टेंट चीज वो हमें देके जाता है, दैट्स अ लाइव फीडबैक। हम अपने ट्रीटिंग डॉक्टर, ट्रीटिंग हॉस्पिटल और रेमेडालो तीनों के लिए लाइव फीडबैक लेते हैं और वो हॉस्पिटल के साथ शेयर करते हैं, सो दैट दे कैन इम्प्रोवाइज। इफ दे आर नॉट इम्प्रोवाइज वी कैन इजीली ब्लैकलिस्ट, क्योंकि हमारे पास 160 है एंड आई जस्ट नीड 20 बेस्ट हॉस्पिटल ऑन माय प्लेटफॉर्म। सो दैट इज द वन ऑफ द फिल्टर सिस्टम वी आर क्रिएटिंग, क्योंकि कोई नहीं कर रहा। आई थिंक फीडबैक लेना तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, और उससे पता भी चलता है कि लाइक हाउ वी कैन इम्प्रूव फर्दर। You can take the example of Tehran, डॉक्टर तेरहान, उन्होंने यही तो डिफरेंशिएट किया कि जब कार्डियक सर्जरी में 60% सक्सेस रेट थे, 40 मतलब आउट ऑफ 100 40 पीपल वर डाइंग, उनका सक्सेस रेट 99 पे था। हाँ, so he's saving 39 patients more, right? तो सेम वे विद द गुड डॉक्टर, कि आप एक होती है जो आपकी बुक परसेंटेज होती है और एक जो आपका लाइफ परफॉर्मेंस होता है। देयर आर डॉक्टर्स इन इंडिया जो वर्ल्ड रिनाउंड हैं और जिनका जो पेशेंट आउटकम है बहुत अच्छा है। तो माय रिस्पांसिबिलिटी टू फाइंड दोस डॉक्टर एंड गेट देम ऑन बोर्ड एंड गिव इट टू द पेशेंट। तो वो हैंड पिक जो एक कंसेप्ट हम लेके आ रहे हैं कि व्हाटएवर विल बी अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म विल बी very selective and it will be approved by multiple feedbacks, कि वहां से जो फीडबैक है उसके हिसाब से हमने इनको लिस्ट किया। Nice.